સુરત રિંગ રોડની ટેક્સટાઇલ માર્કેટો સીલ થતા ધંધા વેપાર ઠપ થઈ ગયા હતા. ફરીથી લેજો. સુરત રિંગ રોડની ટેક્સટાઇલ માર્કેટો સીલ થતા ધંધા વેપાર ઠપ થયા હતા, જેથી કામદારો અને વેપારી લોકો મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરી ચક્કાજામ કરતા પોલીસે હળવો બળ પ્રયોગ કરવાની ફરજ પડી હતી. સુરતના રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી ટેક્સટાઇલ માર્કેટની દુકાનોને સુરત મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ દ્વારા છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ફાયર સેફટી અને બીયુસીના અભાવે સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટની ઘટના બાદ હરકતમાં આવેલી સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા એકાએક કડકાઈ અપનાવતા વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી માર્કેટની દુકાનો સદંતર બંધ રહેતા ધંધો વેપાર પણ ઠપ થઈ ચૂક્યો છે. પ્રતિ દિવસ કરોડોનો વેપાર ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે, જ્યારે ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાંથી રોજીરોટી મેળવતા કામદારોની રોજગારી સામે પણ સવાલ ઉભા થયા છે. વેપારી દ્વારા ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશનને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. રજૂઆત કર્યા બાદ પણ હજુ સુધી કોઈ નિવેડો નહીં આવતા મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ અને કામદારો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા અને ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. મિલેનિયમ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના રસ્તા પર ચક્કાજામ કરાતા ભારે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેથી તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને પરિસ્થિતિ થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે ભારે હોબાળો અને હંગામો કરતા પોલીસે હળવો બળ પ્રયોગ કરવાની ફરજ પડી હતી. ઘટનાના પગલે ડીસીપી, એસીપી તેમજ પીઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. તો બીજી તરફ વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરિયા પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ફાયર એનઓસી વિના કઈ રીતે ઊભું કરવામાં આવ્યું તે એક મોટો સવાલ છે. ત્યાં સુધી તંત્ર માત્ર આંખ આડા કાન કરી તમાશો જોઈ રહ્યું હતું, પરંતુ હવે એકાએક સુરત મહાનગરપાલિકાને જ્ઞાન આવ્યું છે અને બીયુસી અને ફાયર સેફટીના અભાવે સંસ્થાઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જે તંત્ર હમણાં સુધી માત્ર હાથ ઉપર હાથ ધરી બેસી રહ્યું હતું, હાલ માર્કેટની દુકાનો સીલ થતા વેપારીઓ અને કામદારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ધંધા વેપાર પણ ઠપ થઈ જવાના કારણે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેથી તંત્રએ આ બાબતે વચગાળાનો રસ્તો કાઢી વેપારી અને કામદારોના હિતમાં નિર્ણય લેવો જોઈએ તેવું જણાવ્યું હતું. से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। बीयूसी और एनओसी के चक्कर में बिल्डर की गलती से व्यापारी प्रभावित हो रहा है। आज टीडीएस भरना है, जीएसटी भरना है, उसके लिए प्रभावित हो रहा है। खुले आप सूरत के अंदर दारू के अड्डे चल रहे हैं, वहाँ न तो ये सरकारी अधिकारी जा रहे हैं, न पुलिस अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन आज व्यापारियों को यहाँ मार खाने के लिए और उनको भाजपा के जो नेता है वो यहाँ भेज रहे हैं और उनको मार खिला रहे हैं। साहब दारू ने अड्डा चाले से ત્યાં જાઉં સાહેબ, દારૂ ને અડ્ડા ચાલે છે, હું તમારે ભેગો થાનું ક્યાં ક્યાં ચાલે છે એ બંધ કરો તમે. તમારી તેવડ હોય તો આ હું કેમ વેપારીઓને તમે પરેશાન કરો છો? दारूना अड्डा खुलेआम चाले छे, तमने न होय तो हूँ बताऊं तमने बधाने क्या क्या चाले छे. कर्मचारियों को, व्यापारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. व्यापारी भाइयों को जो जीएसटी भरना रहता है, टीडीएस भरना रहता है, बाहरगांव का पेमेंट रहता है, माल का आवागमन रहता है, हर तरीके की दिक्कत हो रही है. हमारे यहाँ पे व्यापारी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है. जो रोज का रोज कमा के खाने वाले लोग हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है. जो पोटला डालते हैं, कटिंग करते हैं, जो छोटे छोटे काम करके रोज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है. और क्या दिक्कत हो रही है? इतने दिन तो मार्केट बंद है, आगे आपकी मांग है? हमारी मांग तो प्रशासन से यही है कि हम लोग हमेशा प्रशासन को आगे भी सहयोग करते आए हैं और अभी भी सहयोग करने के लिए तैयार है. जो भी गाइडलाइन है हमको उचित समय दिया जाए, हम उस गाइडलाइन को पूरा करेंगे, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे. लेकिन यहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार की संवेदना नहीं बता रहा है, वो बहुत ही दुखद बात है. हम लोग सभी टैक्स पेयर हैं, हम लोग हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं हर तरीके से. लेकिन जब 10 दिन से मार्केट बंद है, हम जब कलेक्टर कचहरी, कमिश्नर कचहरी, पोस्ट ऑफिस, यहाँ तक कि सीआर पाटिल साहब के ऑफिस भी जाके आए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी संवेदना नहीं बता रहा है. और जिस प्रकार से हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो, उस प्रकार से 10 दिन से हमारी मार्केट बंद है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है. हम लोग कपड़े के व्यापारी हैं और हमेशा से प्रशासन को हमने सहयोग किया है. अभी मार्केट खुलने देंगे तो फिर फायर की कार्यवाही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी मार्केट के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी एफिडेविट करके लिख के देने के लिए तैयार है कि आप हमको उचित समय दीजिए. 10 दिन का, 15 दिन का आप समय दीजिए और जो भी पोस्टा की या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से अपनी तैयारी बता रहे हैं. मेरा गोविंद धनराज अग्रवाल नाम है. सोमेश्वर मार्केट में हम काम करते हैं. आज फायर की वजह से 10 दिन हो गया है, ये मार्केट पूरा बंद है. इसमें हम लोग पूरे हमारी जो रोजी रोटी का सवाल है उसमें हम लोग सब फंसे हुए हैं. पोस्टा और व्यापारीगण इसमें अगर मिलके राजनीति में बुरी तरह से फंस गए हैं. जैसे बिल्डर की बात है, बिल्डर दुकानें बेच देते हैं और इसमें फायर की जो समस्या है वो लेनी चाहिए बिल्डर को. अब इसमें बिल्डर कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. हम व्यापारी लोग, हमारा व्यापार सब तरीके से इसमें बहुत तकलीफ वाला काम पड़ रहा है. हम इतने दूर से आए हुए हैं, हमारे व्यापारीगण
हम लोग बहुत अच्छी तरह से, कोई भी काम करने लायक है ही नहीं। वहां से जब आते हैं प्रशासन की तरफ से 1 घंटे के लिए बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए कल मार्केट खुलेगा, 2 दिन के लिए बोलते हैं वापस खुलेगा। अब ऐसे ऐसे करते 10 दिन हो गया है, कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं व्यापारीगण मिलके प्रशासन की तरफ से, पॉलिटिक्स की तरफ से अगर कोई हमको सहयोग करे तो हम उसके लिए तैयार है। और जहां तक गाइडलाइन की बात है, हम लोग बिल्डर के अनुसार, जो बिल्डर बोलते हैं हम लोग किया, दुकानें खरीदी हुई है, सब भाड़े से लगी हुई है, तो उसमें हम व्यापारी लोग कुछ नहीं कर सकते।